Hello guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So in some previous session, what we discussed there in the first session, we discussed how to write, how to set Spring MVC setup. In the first session, we discussed there, and in the second session, we discussed there how to display your home page. Then in the third session, we discussed there how to receive backup support from controller to your view page. Okay, controller to view, how to receive backup. Then in the fourth session, we discuss there how to insert record, how to pass parameter. Okay, and that then by passing that parameter, how to insert those parameter into your MySQL table. And then in the fifth session, we discuss there how to receive some objects, some object list, okay, by using collection, okay, how to receive some object list or how to receive some objects from controller to your view page, right? In this session, this is our sixth session, and then in this session, what we have to discuss here, we have to display those received parameter list, okay, not parameter list, those received object, okay, which we are receiving from controller to view page. So our view page is index.jsp, okay, and our controller is person controller. So पर्सन कंट्रोलर से जो भी हम ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अभी हमें यहाँ पे इंडेक्स पेज पे डिस्प्ले करना है गाइस. सो फॉर दैट we will write code in index.jsp page. Okay, this is our person list, guys. Okay, and we can run this. Okay, we can run this. Already I have started my MySQL database. Okay, please start your database first. So my SQL database is already running there. Okay, so now you will see, guys. So I am receiving three objects. This is the first object, this is the second object, and this is the third object. Okay, if you want to verify, you can verify how many objects or how many rows present in your database. Okay, so now I will open my database. And what is our database name? My database name is Spring MVC Test. This is our database. And this is our persons table. And this persons table, we have three records. These three records we are receiving in the form of object. Okay. Who is converting these three rows or three records in the form of objects? Hibernate. Hibernate converting these three rows in the form of objects. And these objects we are receiving, okay, on view page, guys. Okay, these are our three objects. Okay, this may be the object of first id, guys. Okay, you can say this one. Okay, then second one, and then third one. So this object I want to display, okay, I want to display on web page, on view page. Okay, right at this position. So now for that, what I will do here, I will write, okay, this is our container. Okay, and one more container you can write, guys, here. Okay, so we will say div class, okay, div class, or already existing container, you can write this code. Okay, container is a class present in Bootstrap. So now I will say div class once again, div class row at here.
Okay, and then I will say div class, I will say call md, or we can write this container. Okay, we will avoid this container because already we have write this container. Okay, and now inside this container, okay, this is your container, guys. This is your container, and this is your container. Okay, our container starting from here. Okay, and then here we can write div class, row, guys. Div class row. Okay, and then this row class we will close. Okay, before container. Okay, this is your row. Okay, I will say row close. Okay, मैं बोलूंगा रो क्लोज हो गया. एंड नाउ इसे हम थोड़ा सा इंडेंट करते गाइस, इंडेंट करते. ओके, आप एक अच्छी आदत सेट करो आपकी कि आप जो कुछ भी कोड लिखोगे वो वेल इंडेंट करके लिखोगे. दिस इज और रो, and then row can have columns, so I will say div class. Okay, div class call hyphen md hyphen 6 column. Okay, 6 column. Okay, मैंने सेट कर दिया this. Okay, 6 column I will close. Okay, before a row. Okay, before a row. Okay, I will say ये क्या क्लोज हुआ है. Okay, I will say कि call. Okay, hyphen md hyphen 6 close. ओके, एंड नाउ ये आपका, आपने क्या कर लिए कि फर्स्ट रो के अंदर में आपने 6 कॉलम के अंदर में. ओके, मैंने इसे इंडेंट कर लिया वंस अगेन. 6 कॉलम के अंदर में आपने, ओके, 6 कॉलम यूज करके आपने क्या कर लिए, रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड आपने डिस्प्ले करे. सो नाउ वी कैन रिफ्रेश दिस. सो यू विल फाइंड कि आपका ये जो पूरा पेज ऑक्युपाई कर रहा था. ओके, पूरा पेज ऑक्युपाई कर रहा था. सो हमने क्या कर दिए, 6 कॉलम के अंदर में नेम एज एंड फोन वाली फील्ड लिखे, और यहाँ पे हम टेबल डिस्प्ले कर सकते हैं. यहाँ पे हम टेबल डिस्प्ले कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा 6 कॉलम क्लोज हुआ. तो नेक्स्ट 6 कॉलम, ओके, नेक्स्ट 6 कॉलम आई कैन से div class. ओके, आई कैन से कॉल हाइपन md हाइपन 6. ओके, आप थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आप थोड़ा सा देखिएगा. ओके, थोड़ा सा उसको आप स्टडी करने के लिए आप थोड़ा सा देखना. सो नाउ यू विल कम्स टू नो कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है. तो कॉल md6. नाउ हियर आई वांट टू डिस्प्ले माय टेबल. हियर आई वांट टू डिस्प्ले माय टेबल. सो नाउ हियर आई विल राइट अ टेबल टैग. ओके, टेबल. ओके, टेबल क्लास. ओके, एक टेबल नाम का क्लास है. ओके, टेबल नाम का क्लास है. एंड देन हियर वी कैन हैव tr. ओके, inside a tr I will write a ts, guys. Okay, like for example id. Okay, or I can say action, guys, action. Okay, action. Okay, then in next column I want to display name. Okay, then I can say name, age. Okay, and phone. Okay, I want to display 4 column only. Okay, name, age and phone. So now देखते कि हमारा टेबल वेब पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, नाउ यू कैन सी गाइस. सो ये टेबल आ रहा है यहाँ पे. तो एक्शन, नेम एज एंड फोन. तो फिर आपको ये जो कॉलम जो है, ओके, ये कॉलम आपको थोड़ा सा नीचे लेना है उसको, कॉलम को. तो मैं क्या करूंगा गाइस यहाँ पे कि, और आप इससे बोल सकते टेबल को थोड़ा सा, तो आप बोल सकते ओके पैडिंग टॉप. ओके, PT 4 करके मैंने सेट कर दिए. सो नाउ चेक करते कि ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नॉट गेटिंग, ये आपको नीचे नहीं आ रहा है. तो मैं P4 करके बोल देता. ओके, नॉट गेटिंग. सो मैं ये कॉलम को बोल देता. ओके, पैडिंग टॉप 4. ओके ना, आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आ गया. ओके, कॉलम. सो नाउ देन
आपको ये लग रहा है कि ये भी थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो आप ये रो को आप नीचे आप क्लास बोल सकते हैं, क्लास। ओके, इसको भी थोड़ा हम नीचे सेट करके देखते हैं, पैडिंग टॉप 4, क्योंकि वो टाइटल के सामने ये अच्छा नहीं लग रहा। नॉट गेटिंग गाइस। ओके, सो हम पैडिंग के साथ में हम बोलते मार्जिन टॉप, ओके 4, मार्जिन टॉप 4 बोलते। नाउ यू कैन सी गाइस, और थोड़ा नीचे आए। सो कुछ इस तरीके से, ओके इन दिस वे, ओके हमने मार्जिन और पैडिंग सेट कर दिए टॉप, ओके मार्जिन टॉप एंड पैडिंग टॉप। सो नाउ देन हमें यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है गाइस। ओके, आई वांट टू डिस्प्ले सम रिकॉर्ड्स। ओके, लाइक ये रो 1, ये रो 2, समथिंग लाइक। ओके, हमें यहाँ पे ये डबल कोट यहाँ पे मैं थोड़ा रिमूव कर देता, और यहाँ पे टीएच के जगह पे हम बोलेंगे यहाँ पे टीटी राइट नाउ। ओके, सो नाउ ओके, ये आपका टाइटल वाला रो हो गया। ओके, टेबल हेडिंग हो गया, और ये टेबल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड्स। सो नाउ ओके, नाउ यू कैन सी ये आपका कुछ रिकॉर्ड ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। नाउ ये जो हमें 3 ऑब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हमें ये रो के अंदर में डिस्प्ले करना है। ओके, यानी मल्टीपल हमें इसके 3 रोज बनाने हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, I will open Google. Okay, I will open Google, and in Google I will say, okay, JSTL. Okay, Java Spring Tag Library. Java Spring Tag Library. Okay, here I want to use the Java Spring Tag Library. Okay, now Java Spring Tag Library में मेरे को for each loop use करना है guys. Okay, for each loop. Okay, which loop I have to use for each loop. Now you can see आपको JSTL core C for each loop का आपको यहाँ पे सिंटैक्स मिलेगा। सो बिफोर दैट आपको यहाँ पे एक सजेशन मिलेगा, तो कि आपको ये लाइन आपको ऊपर में इंक्लूड करनी है। ओके, वी विल इंक्लूड दिस लाइन। ओके, वी विल इंक्लूड दिस लाइन। डोंट ट्राई टू राइट दिस लाइन। ओके, जस्ट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ऑन योर वेब पेज। ओके, हमें जावा का JSTL जावा स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी का हमें फॉर ईच लूप यूज करना है। So now at the top of the page, okay, I will include that line. So I will include that line. Okay, now I will first of all, okay, so now you can see guys कि यहाँ पे ये लाइन जो है, ओके, सो वी आर गेटिंग दिस जावा स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी। ओके, एंड दिस जावा स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी के लिए हमने यहाँ पे एक प्रेफिक्स सेट करा है सी, and by using this C we can write for loop, for each loop. So हम यहाँ पे बोलते हैं, ओके C कोलन, ओके C कोलन for each, C कोलन for each, ये हमारा for each loop हो गया। तो ये for each loop जो है मैंने ये रो के अंदर, रो के नीचे क्लोज कर दिया है। ओके, ये रो के नीचे मैंने क्लोज कर दिया। तो had I said C1 at here, C1, ओके प्रीफिक्स अगर मैंने मान लो ये टैग लाइब्रेरी के लिए अगर मैंने प्रीफिक्स अगर C1 लगाया, ओके, सो आप यहाँ पे C1 लगा सकते हैं। C1 से क्लोज होगा, C1 से स्टार्ट होगा, C1 पे क्लोज होगा। ओके, बट गुड प्रैक्टिस टू राइट C ऑलवेज। ओके, जनरली हम लोग C लिखते हैं वहां पे, तो इसलिए हम यहाँ पे C से लिखेंगे। ओके, दिस इज अवर जावा स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी। ओके, JSTL। ओके, JSTL के ये हमारे टैग्स है। ओके, जावा स्प्रिंग टैग, ओके स्प्रिंग के ये टैग है, तो उसमें का हम एक फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं। सो वी विल से var इज इक्वल्स टू, var इज इक्वल्स टू मैंने पर्सन बोले, एंड आई विल से आइटम्स। ओके, आइटम्स, ओके आइटम्स, आइटम्स वी हैव टू रिसीव। ओके, आइटम्स, देन मैंने यहाँ पे आइटम्स लिख लिया गाइस। नाउ ये पर्सन लिस्ट के अंदर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स वी आर रिसीविंग। ओके, by using this person list, and then ये person list क्या करेगा, एक एक ऑब्जेक्ट किसे रिसीव करेगा, पीआर को।
सो नाउ चेक करते हैं कि ये 3 टाइम्स इटरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सर्कुलेट हो रहा है। ओके, ये 3 टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज हियर इन पर्सन लिस्ट वी आर रिसीविंग 3 ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ ओके, नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 3 टाइम्स ये लूप, ये वाला, ओके, ये वाली रो जो है 3 टाइम इटरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ यू कैन सी गाइस 3 टाइम इटरेट हो रही है। ओके, एंड नाउ हमें यहाँ पे आईडी डिस्प्ले करना है, यहाँ पे नेम डिस्प्ले करना है, यहाँ पे एज डिस्प्ले करना है, यहाँ पे फोन डिस्प्ले करना है। सो नाउ मैं हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है नेम। सो आई विल से PER, ओके, दिस ऑब्जेक्ट, ओके, दिस ऑब्जेक्ट, ओके, बिकॉज वन बाय वन ऑब्जेक्ट वी आर रिसीविंग इन पर, एंड देन वी विल से पर डॉट नेम, नेम पैरामीटर है वो ऑब्जेक्ट के अंदर में, ओके, पर, ओके। सो नाउ then second we have age there, second we have phone there, name, age and phone। okay, मैंने change कर दिए। now you will see guys, so we will have name, age and phone। okay, these are our 3 objects। and then action के अंदर में हमें यहाँ पे edit और delete लगाना है, edit और delete के लिए लगाना है action। तो इधर आप डिस्प्ले कर सकते हो, वहां पे आईडी डिस्प्ले कर सकते हो, यू कैन डिस्प्ले आईडी हियर। ओके, पर डॉट आईडी, बिकॉज आईडी पैरामीटर हमने पर्सन्स मॉडल क्लास के अंदर में लिखा है, आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एंड नाउ इसके सामने हमें बटन लगानी है, एडिट और डिलीट वाली बटन। सो आप लगा सकते हो, एडिट एंड डिलीट बटन आप सेट कर सकते हो वहां पे। सो यू कैन से एंकर, ओके, एंकर टैग लिखते हैं हम यहाँ पे, एंकर, ओके, HREF सिंपल हम, ओके, यानी टोटली हम JSTL के टैग यूज नहीं कर रहे, जहां पे हमें लग रहा है हम जो लिख रहे हैं वो JSP टैग ही यूज कर रहे हैं। ये हम जो यूज कर रही है HTML JSP टैग है, ओके। बट जहां पे हमें लग रहा है वहीं पे हम ये जैसे ये वाला टैग जो हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, इफ हम लगा सकते हैं, तो ये हम JSTL से ही यूज करेंगे जो हमें लगेगा वो। बाकी हम जो जो भी हमें लगेगा बेसिक, जो भी हमें लगेगा वो HTML के ही टैग यूज करेंगे। सो आई विल से HREF डॉट एक्शन, फिलहाल में कुछ नहीं लिखते गाइस। ओके, एंड देन यहाँ पे हम बोलते एडिट, एडिट, ओके, एडिट के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे लिए एडिट आएगा यहाँ पे गाइस, यू कैन सी एडिट मिलेगा। नाउ देन मैं थोड़ा सा एक पाइपिंग लगा देता हूँ बीच में और एक डिलीट बना देता हूँ उसे, एडिट एंड डिलीट। सो नाउ यू विल सी गाइस, सो वी विल हैव एडिट एंड डिलीट। तो हम इसे एडिट के जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे डिलीट। ओके, यू कैन सी गाइस, तो इस पे हमने क्लिक करे, मैं ये चाहता कि इस पे जैसे हमने क्लिक करे तो ये जो रिकॉर्ड, जो ये वाला रो जो है, ये रो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये मैं ये चाहता कि ये कंट्रोलर के अंदर में जाए, पर्सन कंट्रोलर के अंदर में जाए, और ये आईडी का रिकॉर्ड, ओके, ये आईडी का रिकॉर्ड, ये आईडी का रिकॉर्ड, ओके, ये आईडी का रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करे वहां पे। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि एक्शन के साथ में हम यहाँ पे एक आईडी कॉलम भी बढ़ा देते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो एक हम यहाँ पे नीचे आईडी डिस्प्ले करते सेपरेटली कॉलम आईडी, और ये जो है ऊपर वाला ये निकाल लेते थोड़ा सा। तो हमने इसे टोटल 5 कॉलम्स वहां पे डिस्प्ले करा। ओके, सो नाउ ये आईडी, तो इस पे हमने जैसे मैंने क्लिक करे, हमने जैसे भी क्लिक करे इस पे, तो मैं ये चाहता कि यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, एंड देन अपडेट, ये सबमिट बटन जो है, ये सबमिट बटन अपडेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने इस पे क्लिक करे, ओके, तो ये पर्सन कंट्रोलर में जाएगा, पर्सन कंट्रोलर में ये आईडी का ऑब्जेक्ट लेके आएगा, ओके, ये आईडी का ऑब्जेक्ट लेके आएगा, एंड देन वो ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ओके, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। एंड देन ये सबमिट बटन जो है, ये सबमिट बटन अपडेट में कन्वर्ट होना चाहिए, ओके, अपडेट में कन्वर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो है हमने एक्शन लिखा है, मैंने राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करा है। तो ये जो एक्शन जो है, एक्शन सबमिट पर्सन के जगह पे अपडेट पर्सन होना चाहिए, अपडेट पर्सन एक्शन होना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू I want to convert this submit button, okay, as a update button। Then ये फॉर्म पे जो एक्शन सबमिट पर्सन वाला है वो अभी अपडेट पर्सन होना चाहिए, ताकि मेरे को अपडेट करने के लिए हेल्प मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पे
href के अंदर में हम बोल रहे हैं डॉट स्लैश ओके गेट अपडेट पर्सन। कौन सा एक्शन लगा है हमने? डॉट स्लैश गेट अपडेट पर्सन क्वेश्चन मार्क। ओके, आई वांट टू सेंड वन पैरामीटर देयर, id इज इक्वल्स टू, id नाम का पैरामीटर मेरे को सेंड करना, हमें यहाँ पे सेंड करना है, और id की वैल्यू हम ये भेजना चाहेंगे, id इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। ओके, डॉट स्लैश कौन सा एक्शन हमने लिखे यहाँ पे? गेट अपडेट पर्सन क्वेश्चन मार्क, ओके क्वेश्चन मार्क id is equals to, okay, I want to send person.id. So now if I refresh this, मैंने रिफ्रेश करे, so now you will see guys, आप थोड़ा सा कोड व्यू सोर्स करिए, व्यू पेज सोर्स करिए, ओके आपको पता चलेगा कि हमने वहां पे क्या जनरेट करा। यू कैन सी गाइस, हमने वहां पे क्या लिखा? डॉट स्लैश गेट पर्सन, ये वाले यूआरएल लिखे हमने, ये हमने थोड़ा सा हार्ड कोड लिखे वहां पे, लेकिन आईडी जो है हमने डायनामिकली लिखे। हमने यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 बोले, आईडी इज इक्वल टू 2 बोले, आईडी इज इक्वल टू 3 बोले। सो ये आईडी पैरामीटर हम वहां पे रिसीव पास करना चाहेंगे ये एक्शन के साथ में। तो हम यहाँ पे ओके हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एडिट पे जैसे हमने क्लिक करा, नाउ आप थोड़ा सा आप ये जो यूआरएल जो है आप यूआरएल नोट करना। एडिट पे हमने क्लिक करे तो देखो हमें कौन सा एक्शन सर्च हिट हो रहा है हमारा। ओके, कौन सा यूआरएल हिट हो रहा है? गेट अपडेट पर्सन और id is equals to 1. Okay, if I click on this, so now you will see get update person id is equals to 2. If I click on this, so now get update person id is equals to 3. It means to say, okay, get update person url पे एक id पैरामीटर जा रहा है। कौन सा id पैरामीटर जा रहा है? id की वैल्यू कभी जा रही है 1, कभी जा रही है 2, कभी जा रही है 3। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रोलर के अंदर में जाते और कंट्रोलर के अंदर में ओके यानी पर्सन कंट्रोलर के अंदर में जैसे हमने सबमिट पर्सन लिखा है वैसे हम क्या करते, एक यहाँ पे एक एक्शन लिखते। ओके, एक्शन लिखेंगे यानी एक मेथड लिखेंगे पब्लिक रिटर्न टाइप मॉडल एंड व्यू। ओके, और हम बोलते गेट अपडेट पर्सन। ओके, मैं यूआरएल से रिलेटेड थोड़ा सा मेथड लिख लेता, और गेट अपडेट पर्सन मेथड को बोलते हैं कि एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट आपको रिसीव करना है। सो नाउ आई विल रिसीव एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, मैंने कॉपी पेस्ट करके वहां पे ला लिया। रिटर्न टाइप इज मॉडल एंड व्यू, हेंस वी विल रिटर्न मॉडल एंड व्यू। ओके, दिस मॉडल एंड व्यू रिक्वायर मैप ऑब्जेक्ट, सो मैप ऑब्जेक्ट भी हम बना देते हैं। ओके, ये मैप ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया है। ओके, एंड देन ये मेथड को मैप कर देते हैं, ये मेथड को मैप कर देते हैं एक यूआरएल के साथ में। मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, रिक्वेस्ट मैपिंग एंड मैं बोलूंगा वैल्यू इज इक्वल्स टू, कौन सा यूआरएल आ रहा है वहां पे हमने लिखा था डॉट स्लैश लिखा था। सो नाउ ये वाला यूआरएल जो है, ओके ये यूआरएल डॉट ऑफ छोड़ दीजिएगा यहीं पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लैश गेट अपडेट पर्सन। ओके, गेट अपडेट पर्सन एंड मेथड जो है वो मेथड आ रही है, ठीक है, वो मेथड आ रही है आपके लिए गेट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट मेथड। आपने लिखा नहीं लिखा तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, गेट मेथड के लिए ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है। ये यहाँ पे जैसे हमने पोस्ट लिखा ये कंपलसरी होता है आपको, नहीं तो फिर ये बाय डिफॉल्ट गेट हो जाएगी ये मेथड। लेकिन यहाँ पे आपने गेट मेथड लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा गाइस। सो नाउ देन आफ्टर एक पैरामीटर आ रहा है, आई विल से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, विच पैरामीटर इज कमिंग? आईडी पैरामीटर इज कमिंग। आईडी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं कि आपको रिसीव करना है स्ट्रिंग आईडी, एंड देन हम ये आईडी का रिकॉर्ड फेच करके लाते, रिसीव करके लाते। तो उसके लिए हम सर्विसेज पैकेज के अंदर में, यहाँ पे सर्विसेज पैकेज के अंदर में ओके हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि सर्विसेज पैकेज के अंदर में हम एक मेथड लिखते हैं। सर्विसेज क्लास के अंदर में, पर्सन सर्विसेज क्लास के अंदर में हम क्या बोलते हैं कि हमें पर्सन होना,
ओके, एक पर्सन होना, और आपको एक इंटीजर आईडी आएगा, आपको एक इंटीजर आईडी आएगा। इसका रिटर्न टाइप जो है हमने लिस्ट से चेंज करके इसका पर्सन का ऑब्जेक्ट कर दी, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने जा रहा है। तो हमने सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन बोला, बिगिन ट्रांजेक्शन बोला, एंड नाउ इन बिटवीन बिगिन एंड कमिट हम ये बोल रहे एसीएस डॉट गेट, और हम बोल रहे पर्सन्स डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट होना, और ये आईडी का ऑब्जेक्ट आप हमें दीजिए। हम किसे रिक्वेस्ट फायर कर रहे हैं, हाइबरनेट को बोल रहे हैं कि ये जो आईडी आ रही है 1 आ रही है तो 1 आईडी का ऑब्जेक्ट होना, 2 आ रही है तो 2 आईडी का ऑब्जेक्ट होना, और इसे हम कास्ट कर देते हैं पर्सन्स में, बिकॉज इसका रिटर्न टाइप जो है ऑब्जेक्ट है, इसे हम टाइप कास्ट कर देते हैं पर्सन, एंड क्या बोलोगे, पर्सन। ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अभी हम यहाँ से क्या करते थे, रिटर्न करते थे पर्सन, यानी ये हो गया मैच, पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया बिकॉज हमने पर्सन यहाँ पे रिसीव कर दिया। और अगर एक्सेप्शन अगर आया तो हम यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं, नल। तो ये सेम सर्विस जो है गेट पर्सन सर्विस आईडी यूज करके हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फ्रॉम वेयर वी विल कॉल फ्रॉम दिस लोकेशन, फ्रॉम दिस लोकेशन वी विल कॉल, वी विल से, ओके, वी विल से कि हमें पर्सन सर्विस की एक मेथड कॉल करना है गेट पर्सन, और गेट पर्सन मेथड बोल रही है कि आईडी भेजो, लेकिन आईडी आपको इंटीजर फॉर्म में भेजना है, इसलिए आप यहाँ पे इंटीजर, ओके, इंटीजर डॉट पार्सेंट आप बोल सकते हो, एंड देन आप बोलोगे यहाँ पे आईडी। ओके, सो नाउ इट विल रिटर्न पर्सन्स ऑब्जेक्ट। सो नाउ देन दैट पर्सन्स ऑब्जेक्ट, पर्सन्स क्या बोलेगे आप यहाँ पे, पर्सन, ये पर्सन ऑब्जेक्ट आपने रिसीव कर दी, यानी आई 1 नंबर आईडी का ऑब्जेक्ट, 2 नंबर आईडी का ऑब्जेक्ट, 3 नंबर आईडी का ऑब्जेक्ट आपने पर्सन के अंदर में सेट कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि ये जो नेम वैल्यू एंड एज वैल्यू एंड फोन वैल्यू हमने ऑलरेडी वैल्यू के अंदर में लिखा है, नेम वैल्यू, ओके, नेम वैल्यू हमने लिखा है ऑलरेडी गाइस यहाँ पे। ओके, आप नोट कर सकते हैं, देखो नेम वैल्यू आ रही है, एज वैल्यू, ओके, एक फोन वैल्यू, तो ये हम की जो है ये पास कर देते, लेकिन नेम वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, पर्सन डॉट, मैं बोलूंगा गेट नेम। ओके, ये ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने नेम निकाला, बिकॉज अभी हमें नेम एज एंड फोन ये ऑब्जेक्ट से अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर से मिलेगा। पर्सन डॉट व्हाट आई विल से हियर, गेट एज गाइस, आई विल से गेट एज, एंड देन हियर आई विल से, क्या बोलोगे, गेट फोन। ओके, गेट एज एंड गेट फोन, देन आपको, आपने नेम वैल्यू एज वैल्यू फोन वैल्यू भेजे, लेकिन आपको और 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ओके, एक्शन वैल्यू, ओके, एंड बटन वैल्यू, एक्शन वैल्यू एंड बटन वैल्यू, एक्शन वैल्यू एंड बटन वैल्यू आपको भेजने पड़ेंगे साथ में। ओके, एक्शन वैल्यू एंड बटन वैल्यू, एक्शन वैल्यू अभी सबमिट पर्सन के जगह पे क्या करना है, इसको अपडेट पर्सन। ये तो अभी हम रिकॉर्ड जो रिसीव कर रहे हैं गेट कर रहे हैं, लेकिन अपडेट इसके बाद में भी रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, और सबमिट बटन की वैल्यू जो सबमिट है वो बटन की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। देन वन मोर पैरामीटर नेम वैल्यू एज वैल्यू एंड फोन वैल्यू के साथ में मैं और एक पैरामीटर यहाँ पे पास करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा आईडी वैल्यू, आईडी वैल्यू, एंड मैं बोलूंगा यहाँ पे पर्सन डॉट गेट आईडी, पर्सन डॉट गेट आईडी। तो आप इतना चेक करते, हमें साथ में पर्सन की लिस्ट भी भेजना पड़ेगा, अदरवाइज, ओके, अदरवाइज क्या होगा कि, अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये डेटा तो मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, ओके, बट ये डेटा तो मिलेगा, बट आपके पर्सन के जो ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल के अंदर में जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होके, आपका वो रिकॉर्ड जो है, टेबल वाला रिकॉर्ड जो है वो चला जाएगा। तो इसीलिए हम उसे डिस्प्ले करते हैं, इसलिए हमें वो पर्सन लिस्ट जो है, वो पर्सन लिस्ट भी हमें साथ में पास करनी रहेगी। तो पहले हम इतना चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करते, नाउ यू कैन सी गाइस, आपको रोशन नंदुरकर मिल रहा है, ओके, ये मिल रहा है, लेकिन आपकी यहाँ की टेबल की लिस्ट जो है वो चली गई। बटन की वैल्यू तो हमने अपडेट पर अपडेट तो कर दी, ये बटन के लिए सबमिट से हमने ये बटन को अपडेट कर दिया,
यू कैन सी गाइस। ओके, मैंने व्यू सोर्स करा है, तो ये बटन की वैल्यू जो है, ये बटन की वैल्यू हमने अपडेट कर दी है। एक्शन जो है, एक्शन आपको अभी कौन सा मिल रहा है, जो ये फॉर्म पे एक्शन सबमिट पर्सन था। ओके, इसका एक्शन अभी क्या हो गया गाइस, अपडेट पर्सन। गेटिंग गाइस? तो जो इसका एक्शन सबमिट पर्सन था, अभी उसका एक्शन हमने क्या कर दिया, अपडेट पर्सन। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपने ये टेबल के अंदर में जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करे थे, वो रिकॉर्ड क्या हो गए, ओके चले गए। तो इसके लिए हमें हमें यहाँ से क्या करना रहेगा, जैसे हमने यहाँ से पर्सन की लिस्ट भेजा था, ओके, हमने यहाँ से, आप बोल सकते यहाँ से, जैसे आपने यहाँ से पर्सन की लिस्ट भेजा था, सेम पर्सन लिस्ट वी नीड टू पास, ओके, अलोंग विद दिस कीज। तो आईडी वैल्यू, नेम वैल्यू, एज वैल्यू, फोन वैल्यू, पर्सन लिस्ट, आपने क्या बोले कि पर्सन सर्विस को बोले कि गेट पर्सन दो, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दो, और वो आपने यहाँ पे सेट कर दिया। नाउ वी कैन चेक दिस गाइस। ओके, चेक दिस। नाउ यू कैन सी, आपको ये रिकॉर्ड तो डिस्प्ले हो रहा है, साथ में आपकी लिस्ट भी वापस आ रही है वहां से। ओके, गेटिंग गाइस? तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एडिट के लिए, अब डिलीट के लिए कोड लिख सकते हैं। डिलीट के लिए कि ये बटन जो है, ये बटन डिलीट में कन्वर्ट होना चाहिए। ये फॉर्म का एक्शन अभी क्या होना चाहिए, जैसे हमने अपडेट पर्सन करा वैसे डिलीट पर्सन होना चाहिए। सिंपल है, वेरी मच सिंपल। ओके, ऑलमोस्ट ऐसे ही है, जस्ट आपको थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ये एंकर टैग के अंदर में हमने ये जैसे गेट अपडेट पर्सन लिखा था, सेम टू सेम ये टेक्स्ट जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, डिलीट, और गेट अपडेट पर्सन के जगह पे मैं बोलूंगा गेट डिलीट पर्सन। एंड देन एट कंट्रोलर लेवल मैं एक्शन जो है इसे सेम टू सेम कॉपी कर देता। ओके, लेकिन एक्शन का नाम गेट अपडेट पर्सन के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डिलीट पर्सन। मेथड जो है वो गेट है, और ये मेथड को हम क्या करते हैं, डिलीट पर्सन बोलते हैं, गेट डिलीट पर्सन। ये हमारी गेट अपडेट पर्सन हो गया, प्रीवियसली हमने लिखा था, और ये हमारी गेट डिलीट पर्सन मेथड। ओके, सेम हमें यही लगेगा, जस्ट एक्शन जो है, एक्शन हमें चेंज करना रहेगा फॉर्म का, डिलीट पर्सन, और बटन की वैल्यू जो है हमें वो करनी रहेगी डिलीट। सो नाउ नाउ ओके, हम रन करके देखते हैं इसे। हमने क्या क्या चेंज करा यहाँ से, एक्शन वैल्यू एंड बटन वैल्यू जस्ट, और ये रिक्वेस्ट मैपिंग हमने मेथड को मैप कर दी है कि हमें किसके लिए मैप करना है, गेट डिलीट पर्सन के लिए। एंड दिस मेथड वी विल कॉल, ओके, फ्रॉम व्यू। व्यू से हम ये मेथड कॉल करते हैं गेट डिलीट पर्सन यूआरएल पे। नाउ यू कैन सी गाइस, ये आपका रहा अपडेट, ये आपका रहा डिलीट। ओके, ये डिलीट चेक करिए, और आप यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करके आप देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है, आपको डिलीट पर्सन। ओके, so now in this way we discuss here how to receive record, how to receive record from controller to view. Okay, how to display record or how to receive record from controller to view. Okay, and how to change form action, how to change button value, we discuss here. In the next session we will discuss how to update a record and how to delete a record there. Okay, till then, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, टिल देन, थैंक यू गाइस।